गायब हो गए, भागते फिर रहे हैं कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री है तो इस तरीके के आरोप लगेंगे और कोई देश विदेश घूमेगा तो उसको कुछ पर कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। I would say the ED has been extremely lenient towards Hemant Soren with the kind of damning charges, with the kind of allegations that have been there, and the money trail, and the investigations that has been there at varying stages. He should ideally have been arrested 1 year ago. Any corrupt politician should be convicted and should be convicted, not just going behind bars, but convicted. So I think Congress has been rather reckless in making allegations. We have made allegations, but wherever we realize that the cases have been closed, we haven't, made a person untouchable for the rest of his life. For 40 hours, the Jharkhand Chief Minister goes missing. He's in Delhi till late at night with a group of people. When the ED comes the next morning, he's gone vamoose. Now, if this was a regular accused, it's a different matter. They do these kind of things. As a public functionary, should he just not have gone to the ED like he will tomorrow, presented himself and answered the questions? Why is he running around as if he's already been convicted? देखिए राहुल जी, ईडी ने जब समन किया माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को, उसका जवाब शुरुआती दिनों से पहले तो पत्र के माध्यम से देने का काम किया। उसके बाद खुद माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ईडी के कार्यालय में 9 घंटों तक उपस्थित हुए। देर रात 9:30 बजे 40 घंटे की बात कर रहा हूँ। 40 घंटे कहाँ गायब थे आपके सीएम? ऐसे क्यों भागते फिर रहे थे? अब मैं बोल लूं? हाँ बोलिए। यही तो दिक्कत है ना, गायब हो गए, भागते फिर रहे हैं कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री है तो इस तरीके के आरोप लगेंगे और कोई देश विदेश घूमेगा तो उसको कुछ पर कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। What does being Adivasi have to do with this? He's an accused in a case. He should present himself. इसमें आदिवासी कार्ड कहाँ से आप खेल रहे हैं? ये तो विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। गायब वाली कार्ड कहाँ से खेल रहे हैं? ये गायब वाली बात क्या होती है? मुख्यमंत्री दिल्ली में थे, सबको पता है ना। मुख्यमंत्री अपने निजी कारणों से कहीं जा ही नहीं सकता है क्या? कहीं नहीं जा सकते। पूछ के जाएंगे भारतीय जनता पार्टी से। अब झारखंड के लोगों को पूछ करके जाना होगा। हम इसके खिलाफ हैं। ये जो आपको ये शॉकिंग लग रहा होगा, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन यही तो समझने की जरूरत है देश को कि कोई अगर जा रहा है तो वो मिसिंग है, कोई अगर अपने काम से है तो वो भाग रहा है। अरे भागने वाले लोग और तड़ीपार तो भारतीय जनता पार्टी में मौजूद हैं। उस पर बोलना चाहिए देश को। उस पर देश पूछता है लेकिन कोई जवाब नहीं आता है। मैं वही कह रहा हूं कि ईडी के पास उपस्थित हुए, उसका जवाब देने का काम किया और ईडी ने पुनः मैं आता हूं, ईडी ने कहा था 27 तारीख से 31 तारीख तक आप हमें बताइए कि कौन सा स्थान होगा और कौन सा समय होगा। 27 तारीख शनिवार था राहुल जी, 28 तारीख रविवार था, 29 तारीख को सीएम के ऑफिस ने जानकारी दे दी है कि 31 तारीख को आप मुख्यमंत्री आवास आइए 1 बजे। तो ईडी को इतनी हड़बड़ी क्या थी कि वो दिल्ली के आवास में चले गए? ये भी तो समझना होगा ना। आपकी पूछताछ झारखंड में चल रही है, आप सेगमेंट वाइज पूछताछ कर रहे हैं, तो फिर आप जहां मुख्यमंत्री जाएंगे वहां कैसे चले जाइएगा? It almost seems to be suggestive of the fact that the ED is acting like an ally of the ruling BJP and doing exactly what you want them to. If you ask me about the timing and if you thereby insinuate motives, I would say the ED has been extremely lenient towards Hemant Soren with the kind of damning charges, with the kind of allegations that have been there, and the money trail, and the investigations that has been there at varying stages. He should ideally have been arrested 1 year ago. Again, when you talk of questioning, the timing, if Dheeraj Sahu's wealth had been discovered during the assembly elections, why was it discovered after the assembly election results? Probably it would have benefited us more. So let us not attribute motives. The bigger and the more shocking part today is that an elected CM, perhaps for the first time in India's history, somebody who has been provided Z+ security, goes missing for 30 hours.
Now that is where Hemant Soren has a lot to answer. Were these 30 hours utilized to further settle, the unaccounted cash, 30 lakhs of which, 35 lakhs of which have already been discovered from his house? And they have an old history. At one point of time, Shibu Sorenji used to carry out similar dealings during the JMM bribery case, again in which case he eventually got convicted. And in those days, obviously some 4 Dalmatian dogs were found out from his abandoned bungalow. So I think, JMM has a history of brazen, uncontrolled corruption. And today the moot point is that what were those 30 hours really utilized for? ये आरोप लगा रहे हैं कि जो 40 घंटे आपके सीएम गायब थे, क्या उन्होंने जो बेनामी पैसा है उसको सेटल करने के लिए इन 40 घंटों का इस्तेमाल किया? देखिए, बीजेपी के लोग हास्यास्पद बात करते हैं, मतलब आना है और कुछ भी बोलना है। अरे भाई, 40 घंटे गायब थे और जो 4 साल से काम कर रहे हैं वो नहीं दिख रहा है इनको। इनके पास झारखंड में नेता नहीं है हेमंत सोरेन जी का मुकाबला करने के लिए। राहुल जी, आप आएंगे झारखंड चुनावों में, आप भी ये महसूस कीजिएगा। मैं आप पर थोप नहीं रहा हूं। जब आप आइएगा तो खुद स्वयं देखने का काम कीजिएगा। और ये क्या बोल रहे हैं, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पर पैसा लेते हुए पकड़े जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के, वो पैसों की बात कर रहे हैं। Also, Tuhin Sinha, if he had to hide the money, he had many months to do it. He didn't have to do it in the last 40 years. So, some of what you're just firing from the hip. और एक बहुत महत्वपूर्ण बात राहुल जी, जब मुख्यमंत्री अपने दिल्ली के आवास पर मौजूद नहीं है और वहाँ कोई कुछ भी रख के चला जाएगा, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? All of these cases, whether it is the mining scam, all of these cases, whether it is the mining scam or the land scam, they have followed a certain pattern. His personal staff, Pintu ji को जानते हैं खत्री जी? Pintu ji, his constituency representative, all of the money were routed through these people, and that is how Benami transactions were carried out. So today, if he chooses to, we don't know how many. No, about the 36 lakh rupees which were found, the JMM is saying maybe it's the ED that put the money there when he was not there. How do you know whether the money was there originally or whether it was put by somebody from the investigative agency to show the CM in a bad light? No, we have seen how the Indi alliance partners, in neighboring Bengal, they had attacked ED officials, and some of the ED officials sustained serious injuries when they were going to arrest Shah Jahan, a close aide of Abhishek Banerjee. So we know that they can, demonize institutions to the way they want, but fact is that these are credible institutions. ED has a success rate of 94% of all the cases, 25 cases which have eventually been logically taken to its logical end. 24 convictions have been obtained. But yes, it's a fact that these cases are never easy to as former deputy director of the enforcement directorate, is it not correct to say the ED is also doing the whole job of pouring some ghee into the fire and trying to make the fire look bigger than it actually is? So the ED is also playing a very partisan role here. We have nothing to do with the politics. देखिए, बहुत सिंपल है, ये कहना कि सैटरडे था, संडे था, सम्मान झारखंड के मुख्यमंत्री को नहीं दिया गया, वो हेमंत सोरेन को दिया गया इन पर्सनल कैपेसिटी। सर, आप बोल रहे हैं ईडी हैज नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स। अच्छा, ये बताइए, जब चार्ज लगता है अजीत पवार पे, सरकार में लोग कहते हैं कि 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया, जब वो आ जाते हैं बीजेपी के साथ, तब तो ईडी सीबीआई एकदम फेल पड़ जाते हैं, फिर उनकी रुचि नहीं होती। आप लोगों की रुचि उसी में है जो विपक्ष में है, उसमें नहीं है आपकी रुचि जो सरकार में बैठा है। देखिए, ऐसा नहीं है, ये तो देखिए, कोई भी संस्था एजेंसी है, उसका राजनीति से कोई लेन देना नहीं है। ये आरोप पहले भी लगते रहे, पहले की सरकारों में भी लगे हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय तक ने एक किसी जगह सीबीआई को पिंजरे का तोता कह दिया था। ये बातें चलती रहती हैं। और देखिए, ये सारा जो है, आप एक चीज को बहुत ध्यान दें कि ईडी जो है, क्या सिर्फ पॉलिटिशियंस के केस कर रही है? ईडी के पास जो जितने भी पीएमएलए के केसेज हैं, उनमें यदि पॉलिटिशियंस के पॉलिटिकल लोगों के केसेज को देखा जाए तो बिलो 3% है। सारी चर्चा 3% की होती है, उनकी नहीं होती जो कि बाकी लोग हैं, जिसमें बहुत बड़े बड़े कॉरपोरेट भी हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं, उनकी भी जांच होती, कोई हल्ला नहीं होता। और देखिए, एक नया ट्रेंड है, मैं तो ये कहूंगा पिछले करीब 1.5-2 साल से एक नया ट्रेंड चला है कि जो ही किसी को एक जांच के लिए साधारण सम्मन दिया जाता है, उसके लिए सड़कों पे प्रदर्शन होते हैं, माहौल बनाया जाता है,
तो राजनीति एजेंसी कर रही है या कोई और लोग कर रहे हैं? आप इसी का एक कहना नहीं चाहिए, लेकिन अमेरिका में ट्रंप जो है, डोनाल्ड ट्रंप वहां के पूर्व राष्ट्रपति हैं और अभी भी जो चुनाव वहां भी बहुत नजदीक है और वो एक प्रमुख उम्मीदवार के रूप में उभर कर आ रहे हैं, ये सब क्लियर है। उनको बार बार बुलाया गया एजेंसियों के सामने, उनको गिरफ्तार भी किया गया टेक्निकली, कहीं कोई सड़कों पे लोग नहीं उतरे, क्योंकि अपनी एजेंसियां जो कि विधि के द्वारा स्थापित है उन पे उनको भरोसा है। क्या हम लोगों को अपनी न्याय व्यवस्था, हमारे देश की संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं है?